Good morning, children. So, beta, today we are going to start with a recursion output sheet. With this lecture, I am attaching one sheet for the recursion output that may be having 8 to 9 problem, and children, many problems are those which have already appeared in the board examination. Children, these problem appear in the compulsory part, means part 1 of the question paper, and they have the weightage of 5 marks. Okay, so many problems are the from the board. Okay, and if you will look at the sheet, children, so you will find that first two problem we are going to talk today, question 1 and question 2, and children, both of these problems have already appeared in the board examination in class 12th. Hey children, I have already taught them that how to solve these problem, but for class 12b children, you have to see that how many programs you have already done and how many are left. Okay, so children, here I am going to start with the question number 2. If you will look at the question number 2, that what is given, a program segment is there, int sum fn integer b, means the name of the function is sum fn integer b, and then here it is written if b equal to 0 then return 0, और फिर else नहीं है यहाँ पे, return b modulus 10 plus sum fn b by 10, and then two outputs are asked. Okay, what value will be written by the function sum fn 946, a number is passed 946 to the function, then we have to tell what value will be written by the method. Okay, so I take you to the solution of this. So children, here if you will look at the solution, so now see that the same function is written here, int sum fn, and I am taking its first output. Suppose that if the value of b is passed at 946, then what will be the output? Okay, so I am passing here 946. So the whole procedure is shown that how you are going to solve this problem. Okay, so 946, suppose that if you have made the first call of the function is 946. So children, in the first time the value which you will pass 946, that will be stored into b. यानी बेटा जो पहला फंक्शन जो कॉल होगा उसमें b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 946. ठीक है, तो जब 946 है तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा जरा देखिएगा ध्यान से. यहाँ पे क्या लिखा है फंक्शन में, इफ b इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0. तो चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द रिटर्न फंक्शन. Okay, that the return function, children, you know that it performs two job. एक तो ये क्या करता है कि that it sends the control back to the calling method, यानी कि आपका कंट्रोल उसी फंक्शन में वापस चला जाता है जहाँ से हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं. सेकेंड थिंग, इट में ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू विद इट. ठीक है, और जब ये वापस जाता है तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि दैट इट विल ऑल्सो टेक अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला है रिटर्न 0, तो जैसी बेटा ये लाइन यहाँ पे आती है तो क्या करेगा, ये तुरंत अपने साथ 0 लेके कंट्रोल को उसी फंक्शन में पास कर देगा जिस फंक्शन से कंट्रोल यहाँ पर आया है. ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पे पहली कॉल है 946 अंदर आई है, क्या बी की वैल्यू 0 है, नो. तो बेटा फिर यानी कि ये लाइन नहीं चलेगी, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा. आपको पता है कि ये लाइन तभी चलनी है जब बेटा बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. ठीक है, अच्छा खास बात यह है कि यहाँ पे एल्स नहीं लगाया गया है. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर बी की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये लाइन तो चलेगी नहीं, तो कंट्रोल अपने आप कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. ठीक है, तो अगली लाइन पे क्या लिखा है, रिटर्न बी मॉड्यूलस 10, यानी 946 का 10 से रिमाइंडर. तो ये देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया, रिटर्न 946 मॉड्यूलस 10 प्लस सम एफ एन. तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस सम एफ एन बी डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 946 डिवाइडेड बाई 10. तो बेटा इस लाइन में आप देखिए ये क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ हुआ है रिटर्न, और फिर हमको ये वैल्यू करनी है रिटर्न. पर इस वैल्यू में दो पार्ट हैं. पहले पार्ट में बेटा एक कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए 946 मॉड्यूलस 10. तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका, 946 मॉड्यूलस 10, इट विल रिजल्ट टू 6. You know that when we divide a number by 10, it always return the last digit of that number. तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 946 का 10 से रिमाइंडर 6 आ जाएगा प्लस. और बेटा जब प्लस के बाद जब आप आगे जाते हो तो बस यही चीज़ हमें सीखनी है. ठीक है ना, जब इसमें जब आप 6 में जब आप कुछ प्लस करोगे जो आंसर आएगा वही तो यहाँ पे करना है रिटर्न. ठीक है, लेकिन
ये वैल्यू रिटर्न वाली तब प्रोड्यूस होगी जब यहाँ से भी कोई आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है कि ये फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को ही कॉल कर रहा है। आपने ध्यान दिया, जो सम एफ एन है ये बेटा मेरे फंक्शन का नाम है और ये अपनी बॉडी में ही सम एफ एन को कॉल कर रहा है। और आपको पता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ ये है कि बेटा जब ये सम एफ एन अपनी बॉडी से कॉल किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या पास की गई है, 946 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा था, b डिवाइडेड बाई 10। और बेटा फर्स्ट कॉल में b की वैल्यू 946 है, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है ना दैट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाई 10 देन इट रिमूव्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम दैट नंबर। यानी बेटा आपके नंबर में से 6 रिमूव हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 94। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये आपने यहाँ पे क्या किया, एक कॉल कर लिया फंक्शन सम एफ एन। तो बेटा ये फंक्शन अपनी बॉडी से ही अपनी एक सेकंड कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है। और आपका कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड कॉपी में, ठीक है। तो एक सेकंड कॉपी के लिए पूरी मेमोरी एलोकेट होगी, यानी यही वाला पूरा फंक्शन बेटा एक बार फिर से इसकी कॉपी बनेगी। और उस कॉपी में जो b की वैल्यू है वो क्या पास की गई है, 94। और आपका कंट्रोल यहाँ पे वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ वाली कैलकुलेशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, 6 प्लस के बाद वो में क्या था, ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया, b इक्वल टू 94। तो सेकंड कॉल में बेटा b की वैल्यू कितनी आई है, 94। अब 94 के लिए ये वाला फंक्शन फिर से चलाइए, इफ़ b इक्वल टू 0 नो, तो कंट्रोल आगे आ जाएगा, क्या आएगा, रिटर्न b मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे बेटा वही सेम का कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, रिटर्न 94 मॉड्यूलस 10। 94 मॉड्यूलस 10 मीन्स 4, ठीक है ना, 4 प्लस सम एफ एन 94 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि अब b को 10 से डिवाइड करना है तो 94 को 10 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 विल बी रिमूव्ड। तो यानी बेटा अब ये जो सेकंड कॉल थी इसने क्या किया, अपने अंदर से एक थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, सम एफ एन 9। तो आप अपनी सेकंड कॉपी से इसी फंक्शन की थर्ड कॉपी कॉल कर रहे हैं। और थर्ड कॉपी में बेटा b की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से 9 आई है, ठीक है। तो अब जरा चेक करिएगा, b की वैल्यू 9 के लिए फिर से चलाइए ये वाला फंक्शन। अब b में 9 है, इफ़ b इक्वल टू 0 नो, b की वैल्यू 0 है, नो, तो फिर कंट्रोल आगे जाएगा और यही लाइन चलेगी, रिटर्न b मॉड्यूलस 10। तो b का 10 से रिमाइंडर निकालिए, 9 का 10 से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। और सम एफ एन 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10 बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि सम एफ एन। तो अब देखिए थर्ड कॉल में b की वैल्यू यहाँ पे 0 पास होगी और द फंक्शन विल कॉल इट्स फोर्थ कॉपी फ्रॉम द थर्ड कॉल। यानी बेटा जो थर्ड कॉल है ये अपने अंदर से फोर्थ कॉल प्रोड्यूस करेगा और फोर्थ कॉल में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि अब इसी फंक्शन की फोर्थ कॉपी एक्टिवेट होगी और अब की बार b की वैल्यू 0 पास हुई है। तो अंदर आ जाइए, क्या लिखा है, इफ़ b इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। और सही बात है, अब की बार बेटा आपका ये जो इफ़ वाला पोर्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो कौन सी लाइन चल जाएगी, रिटर्न 0, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहीं पे जरा रुक जाइएगा, ध्यान से जरा पहले कुछ बातें समझ लीजिए। फंक्शन में आपने क्या देखा कि ये जो इफ़ वाला पार्ट है ये कब एग्जीक्यूट होता है, फोर्थ कॉल में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस केस। आपको याद है ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है ये दो पार्ट में होता है। बेस केस वो पार्ट होता है जहाँ पे बेटा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। सॉरी, प्रोग्राम क्या मतलब, जो रिकर्सिव प्रोसेस है दैट टर्मिनेट्स व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ बेस केस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो स्टेटमेंट है रिटर्न वाला, ये फंक्शन को अपनी बॉडी में कॉल कर रहा है, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इट विल बी नोन एज रिकर्सिव केस, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमारा यहाँ पे बेस केस और रिकर्सिव केस में ये फंक्शन तैयार है। सेकंड थिंग आपने क्या देखी कि जब हम ये इस सेगमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं देन इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स 4 कॉपीज, ठीक है, 4 कॉपीज ही क्रिएट हो रही हैं। आप तो केवल एक बार कॉल करते हो सम एफ एन 946, बट जब 946 कॉल करते हो तो ये अपने अंदर से 6 को कैलकुलेट करके 94 अगले फंक्शन में पास कर देता है। सेकंड कॉपी में b की वैल्यू 94 है, ये अपने अंदर से 4 को कंटेन करके 9 को अगले थर्ड कॉल में पास कर देता है। थर्ड कॉल 9 कंटेन करता है और 0 को फोर्थ कॉल में। यानी कि बेटा फर्स्ट मेथड कॉल से सेकंड कॉल प्रोड्यूस होती है, सेकंड कॉल से थर्ड कॉल और थर्ड से फोर्थ कॉल, और फोर्थ कॉल पे जाके ये रिकर्सिव प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। अब कोई कॉल प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो अब यहाँ से आपको सीखना है कि रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न। तो बेटा सबसे लास्ट से शुरू करिए, सबसे लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट चला है, रिटर्न 0।
ठीक है, तो ये बेटा ये जीरो अपना कहाँ करेगा रिटर्न, बस यही बहुत समझने की चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द कॉलिंग मेथड, कि यानी कि ये अपना कंट्रोल कहाँ लेके जाएगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। तो आपको याद देना ये सम एफ एन जीरो आपने कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था। ठीक है ना, ये आपने यहाँ से कॉल किया था, याद रखिए थर्ड कॉल के अंदर से। तो ये जीरो भी पता है यहीं लौट के जाएगा। तो ये देखिए बेटा ये कॉल जब वापस आएगा तो अपने साथ क्या लेके आ जाएगा, जीरो। और अब देखिए अब ये वाला जो स्टेटमेंट था ये कंप्लीट हो गया। रिटर्न 9 मॉड्यूलस 10, यानी कि 9 और प्लस सम एफ एन, तो ये अपने साथ जीरो ले आया। तो 9 प्लस जीरो कितना आंसर आ गया आपका, 9 आ गया। और अब ये लाइन कंप्लीट हो गई, रिटर्न 9। ठीक है ना, ये 9 अपना कहाँ करेगा रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो बेटा ये जब वापस आएगा तो अपने साथ 9 लेके आएगा। और 94 मॉड्यूलेशन का रिजल्ट कितना है, 4, तो यानी 4 प्लस 9 कितना आंसर आ गया आपका, 13 आ गया। तो अब ये लाइन भी कंप्लीट हो गई, रिटर्न 13। तो ये 13 कहाँ रिटर्न करेगा, आपके फर्स्ट कॉल में। ये जब वापस आएगा तो क्या लेके आएगा, 13। 13 और प्लस 6, 6 यहाँ पहले से ही है, तो कितना आंसर आ गया आपका, 19। रिटर्न 19, यानी फाइनली ये फंक्शन जहाँ भी कॉल किया गया है वहाँ पे ये क्या वैल्यू लेके आ जाएगा, 19 लेके आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा जो फाइनल आंसर होगा ये क्या होगा, 19। तो बेटा आपको जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत यहाँ पे ध्यान से करनी है। तो अब आप अगर इस पूरी प्रोसेस को देखें तो इसने किया यहाँ पे इसने 6 निकाला, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9, और ये क्या है, 9 4 6, दीज आर द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। इसने क्या किया, 9 को 4 में ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसको 6 में ऐड किया, तो 6 प्लस 4 प्लस 9 कितना आंसर हो गया आपका, 19। तो यानी ये प्रोग्राम कर क्या रहा है बेटा, इट इज़ फाइंडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो अगर आप देखो तो प्रोग्राम में यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, लास्ट में ये पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ बीइंग कंप्यूटेड बाई फंक्शन सम एफ एन। आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द मेथड इज़ यूज टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, यानी जो नंबर हमें दिया गया है ये उसके डिजिट्स का सम निकाल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अब जब इसका जब फर्स्ट पार्ट जब आप समझ गए हो कि 946 में क्या हो रहा है, 9 प्लस 4 प्लस 6 यानी सम निकल रहा है, इन द सेम वे आप सेकेंड वाले का आउटपुट बता सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है ना, तो जो भी आंसर आपका आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ चेक कर लीजिए, इसका जो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अगर आप एक का अगर निकाल लेते हैं तो सेकंड वाला बताना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ऐसे ही बेटा आप जो फर्स्ट पार्ट है इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला इतना ईजी नहीं है, फर्स्ट वाला बेटा ट्रिकी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे करना है ये जरा हम लोग चेक करते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है इसको जरा एक बार चेक करिए। दिया है वॉइड अननोन इंटीजर एन कॉमा इंटीजर बी। ठीक है बेटा, यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग दो वैल्यूज़ पास करते हैं, एन और बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं इन्होंने स्टेटमेंट्स, और फिर पूछा है आउटपुट ऑफ अननोन 8,2, यानी बेटा हमने पहली कॉल की 8/2 से, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में शीट के। तो देखो बेटा जब पहली कॉल होगी और आप वैल्यू क्या पास करेंगे, 8 और 2, तो आपको पता है ये 8 और 2 मेरे कहाँ जाके स्टोर होने हैं, एन और बी में। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। और अब ये क्या करेगा, एन की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 2 के लिए ये फंक्शन आपका बेटा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो जरा चेक करिए क्या लिखा है, इफ़ एन इक्वल टू 0 देन रिटर्न। तो ये तो क्या हो गया आपका बेस केस हो गया है ना, इफ एन इक्वल टू 0 देन रिटर्न। अच्छा एक और खास बात बेटा, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप इस फंक्शन का जो हेडर है वो ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉइड। ठीक है, और जिस फंक्शन के नेम के पहले बेटा वॉइड होता है उसके बारे में हम लोगों ने क्या सीखा है कि दैट दीज आर द मेथड विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ओके, द मेथड विच आर डिक्लेयर्ड विद वॉइड कीवर्ड, वी नो दैट वाट इट मीन्स कि दे नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। तो बेटा ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कई लोगों ने पहले देखा है पर कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो उन्हें ध्यान से ये बात समझनी होगी। ठीक है, कि जब फंक्शन के नाम के पहले वॉइड है तब भी यहाँ लिख दिया है रिटर्न, क्यों लिख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने आपसे कुछ बताया था कि द रिटर्न स्टेटमेंट परफॉर्म्स 2 जॉब्स। ठीक है, नंबर 1 कि दैट इट टेक्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड, सेकेंड जॉब
इट में ऑल्सो रिटर्न अ वैल्यू विद इट, यानी कि जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है जावा में, तो ये कंट्रोल को कॉलिंग मेथड में, यानी जहाँ से कॉल किया है वहीं पे कंट्रोल वापस पास कर देता है। सेकेंड थिंग कि जब कंट्रोल वापस जाता है तो इट में टेक ऑल्सो अ वैल्यू विद इट, कि वापस जाते जाते अपने साथ एक वैल्यू भी लेके जाए। तो वॉइड का मतलब क्या है, दैट इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे केवल क्या लिखा गया है, रिटर्न, यानी कि वापस जाइए, ठीक है। लेकिन जब ये वापस जाएगा कंट्रोल को लेके, तो ये कोई वैल्यू लेके नहीं जाएगा, केवल क्या करेगा, तो बेटा ये दो में से केवल एक काम करेगा, यानी क्या करेगा, केवल कंट्रोल ये वापस सेंड कर देगा विदाउट एनी वैल्यू। वैल्यू तो वापस कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फंक्शन के नाम के पहले क्या लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक समझने की चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। इसके बाद बेटा फिर यहाँ पे ये 3 लाइनें हैं, ठीक है, और इसमें जो बीच की लाइन है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्सन हो रहा है। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो बेटा मैंने 8 एंड 2 पास कर दिया, और आगे आइए, क्या n की वैल्यू 0 है, नो, n की वैल्यू तो कितनी है, 8 है, तो यानी कि ये आगे जाएगा और ये 3 लाइनें चलाएगा। देखिए कौन कौन सी, d इक्वल टू n मॉड्यूलस b, n का b से रिमाइंडर निकालिए, तो n की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 8 मॉड्यूलस 2, ठीक है। तो 8 का 2 से रिमाइंडर निकालिए, d की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इसके बाद जरा सेकंड लाइन देखिएगा, सेकंड लाइन पे क्या लिखा है, अननोन n डिवाइडेड बाई b, यानी 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 को 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 4, और कॉमा b की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, अननोन 4 कॉमा 2। बट यहीं पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है बेटा, यहीं पे रिकर्सन भी तो हो रहा है एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम यहाँ पे रिकर्सन भी हो रहा है, यानी फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो आपको पता है ना क्या होगा, जो फर्स्ट कॉपी है इट विल कॉल इट्स सेकंड कॉपी फ्रॉम द मेथड, ये अपने अंदर से क्या करेगा, अपनी सेकंड कॉपी कॉल कर लेगा। तो ये देखिए अननोन 4 कॉमा 2, यानी 4 एंड 2 दो इंटीजर देके मैंने इस फंक्शन की सेकंड कॉपी कॉल कर ली। पर बेटा ये जो सेकंड कॉपी है इसमें n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो ये देखिए n की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 ही आई है, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 के लिए ये फंक्शन दोबारा फिर चलेगा, फिर यहाँ पे आइए। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जब आपका कंट्रोल ऑफ सेकंड कॉपी में चला गया है, यानी कि ये लाइन बेटा आपकी एग्जीक्यूट होने चली गई है, ठीक है। और अभी यहाँ की एक थर्ड लाइन और भी तो बची है इसके नीचे, कौन सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, यानी डी को प्रिंट करो, और डी आपने कहाँ कैलकुलेट किया था, यहाँ पहली लाइन में। तो डी की वैल्यू 0 है जो अभी प्रिंट होनी है, पर ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि थर्ड लाइन पे आने के पहले ही आपने कंट्रोल कहाँ पास कर दिया, सेकंड कॉपी में, याद है ना आपको। देखिए इफ़ के नीचे की 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें चलनी है, पहली तो चल गई, डी की वैल्यू 0 हो गई, और सेकंड लाइन पे आती कंट्रोल सेकंड में चला गया, तो आपकी थर्ड लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। चलिए सेकंड चलाइए, एन की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, सॉरी, तो क्या एन 0 है, नो, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा और ये 3 लाइनें चलाएगा। तो d इक्वल टू एन मॉड्यूलस बी, यानी कि 4 मॉड्यूलस 2, तो बेटा d की वैल्यू फिर से 0 आ गई। चलिए ये लाइन चल गई। इसके बाद आगे चलिए, अननोन n डिवाइडेड बाई b, यानी 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 हो गया, और b की वैल्यू 2, और यहाँ पे भी देखिए तो वही सेम सीन क्रिएट हो गया, ठीक है ना, कि पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन सेकंड लाइन पे आते ही कंट्रोल कहाँ चला गया आपका, थर्ड कॉल पे चला गया। थर्ड कॉल में n की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, और आपकी यहाँ पे भी जो थर्ड लाइन थी ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, वाली लाइन आपकी चल ही नहीं पाई, ये लाइन अभी नहीं चली है, ठीक है। आ जाइए थर्ड कॉल में, n की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, एग्जीक्यूट करिए, इफ़ n इक्वल टू 0, क्या n की वैल्यू 0 है, नो, तो ये आगे बढ़ जाएगा और इन 3 लाइनों को चलाएगा। d इक्वल टू 2 मॉड्यूलस 2, 2 का 2 से रिमाइंडर 0, अननोन n डिवाइडेड बाई b, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करिए तो 1 हो गया, और b की वैल्यू 2 ही रहेगी। और ये इसने क्या किया बेटा, यहाँ थर्ड के अंदर से अपनी फोर्थ कॉल प्रोड्यूस कर ली, और यहाँ पे भी वही सेम सीन हुआ बेटा, फर्स्ट लाइन चल गई, सेकेंड लाइन पे आते ही रिकर्सन हो गया, इसने अपनी फोर्थ कॉपी कॉल कर ली, यानी कि ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने चली गई, और थर्ड लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई, कौन सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, डी को प्रिंट करना था, नहीं प्रिंट हो पाया। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए फोर्थ कॉल में, n की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, चेक करिए, क्या n 0 है, नो, आगे आइए, फिर से वही 3 लाइनें चलेंगी। d इक्वल टू 1 मॉड्यूलस 2, 1 का 2 से रिमाइंडर, d की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर अननोन n डिवाइडेड बाई b, 1 को 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया, n की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2, और ये लेके आपने क्या किया बेटा, अपनी फिफ्थ कॉल प्रोड्यूस कर दी, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे
अपनी फिफ्थ कॉल प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, और बेटा जब आप ये फिफ्थ कॉल में आओगे तो यहाँ पे भी देखिए फोर्थ कॉल के अंदर क्या सीन है। पहली लाइन चल चुकी है, डी की वैल्यू 1 हो गई है, सेकंड लाइन पे आते ही कंट्रोल फिफ्थ कॉल में मूव कर गया, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने चली गई और डी प्रिंट करना है लास्ट में। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। ठीक, तो कंट्रोल अब आपका फिफ्थ कॉल में आ गया। फिफ्थ कॉल में आई है, अननोन में जो है एन की वैल्यू 0 आई है और बी की वैल्यू 2 आई है, तो एन की वैल्यू 0 के लिए ये फंक्शन चलाइए फिर से, इफ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, अब की बार सही में n की वैल्यू 0 है, तो कौन सा केस चल जाएगा बेटा, आपका बेस केस चल जाएगा। और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है, रिटर्न। तो ये देखिए आपका अब की बार क्या चल गया, रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने यहाँ पे देखा कि अब फिफ्थ कॉल में आके क्या हुआ, रिकर्सन, आपकी रिकर्सिव प्रोसेस जो थी वो टर्मिनेट हो गई। क्लियर है, तो रिकर्सिव प्रोसेस आपकी जब टर्मिनेट हो गई और फाइनल जो चला स्टेटमेंट वो क्या चला, आपका रिटर्न। ठीक है, तो अब इसके आगे अब कैसे आंसर आएगा, इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखेगा। अभी तो हमने देखा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, कि कैसे मेरा ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अब इसका जो आंसर कैसे आएगा ये अच्छे से कि देखना है कैलकुलेट करके। तो बेटा जैसे ही इसने यहाँ पे ये देखा रिटर्न, तो पता है ना ये क्या करेगा, देखिए कोई वैल्यू नहीं करेगा रिटर्न, मैंने पहले बता दिया कि फंक्शन वॉइड है। तो ये आपका कंट्रोल बेटा जहां से आया है उसी जगह पे वापस शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना, तो कंट्रोल कहाँ से आया आपका, फोर्थ कॉल की सेकंड लाइन से। ठीक है, तो ये जो सेकंड लाइन थी ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई। आपने अननोन 02 पास किया था, वो गया फंक्शन में और वहाँ से वापस लौट के आ गया, यानी कि ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको पता है कि फंक्शन में 3 लाइन एग्जीक्यूट होनी थी, पहली एग्जीक्यूट हो गई, सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई। अब ये क्या करेगा, अब आपकी ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कौन सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, और डी की वैल्यू यहाँ जानते हैं ना कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये जो डी था यहाँ पे जो प्रिंट होना था, तो ये क्या करने वाला है बेटा, डी को प्रिंट कर देगा। तो डी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, 1। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट हो गई 1। और अब आप ध्यान दीजिए, तो इस फंक्शन की ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो गई, और जब ये तीनों लाइनें जब एग्जीक्यूट हो गई तो अब क्या होगा, ये फंक्शन आपका ओवर हो गया। सही है कि नहीं, ये फंक्शन ख़त्म हो गया। और जब ये फंक्शन ख़त्म हो गया तो अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो आपने ये जो फोर्थ कॉल थी अननोन वाली, ये कहाँ से की थी, थर्ड कॉल से, यानी कंट्रोल आपका वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आपने ये कॉल किया था अननोन 1 एंड 2 को। तो अननोन 1 एंड 2 आपने यहाँ से कॉल किया था, थर्ड कॉल की सेकंड लाइन। तो अब इस लाइन का भी एग्जीक्यूशन ओवर हो गया। कैसे, आपने कॉल किया था अननोन 1 2 को और ये 1 प्रिंट करके चला आया, ये देखिए यहाँ पे 1 आपका प्रिंट हो चुका है। अब आगे आइए, यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई आपकी थर्ड कॉल की सेकंड लाइन। अब ये आगे बढ़ेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0, तो अब ये 0 प्रिंट करेगा। कहाँ प्रिंट करेगा, देखिए प्रिंट लिखा है, बिना लाइन चेंज किए 1 के आगे ये 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद अब आपकी ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, और जैसी बेटा ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो आपको पता है फंक्शन के तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, द फंक्शन विल गेट ओवर। ओके ना, ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। और अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ से आपने अननोन 2,2 को कॉल किया था, ये कहाँ से कॉल किया था, सेकंड कॉल की सेकंड लाइन से, तो आपका कंट्रोल वापस यहीं शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अननोन 2,2 पे, और ये लाइन भी एग्जीक्यूशन ओवर हो गया। कैसे, आपने जब इसको कॉल किया तो इसने यहाँ पे 0 प्रिंट किया और वापस आ गया। तो बेटा अब जब ये वापस आया तो ये लाइन का एग्जीक्यूशन ओवर हुआ, आगे बढ़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, और यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, तो बेटा ये भी 0 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और अब आपका इस लाइन का भी एग्जीक्यूशन ओवर हो गया। ठीक है, और ये फंक्शन भी ओवर हो गया। अब कहाँ चलेंगे, अब आप ऊपर चलेंगे जहाँ से आपका अननोन 4,2 कॉल हुआ था। तो ये चलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे आ गए हम लोग। ठीक है, फर्स्ट कॉल में जब आप आएंगे तो आपकी इस लाइन का एग्जीक्यूशन ओवर हुआ 4,2 का, आगे बढ़िए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0। ठीक है ना, तो 0 एक और प्रिंट करिए, तो ये लीजिए 0 प्रिंट हो गया, इसका भी एग्जीक्यूशन हुआ, ओवर हुआ, और ये फंक्शन भी खत्म हो गया। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ से आपने अननोन 8,2 कॉल किया था। ठीक है, तो ये देखिए वापस लौट आया वहीं पे जहाँ से कॉलिंग हुई थी, और ये सारी कॉल्स ओवर हो गई, और मेरा जो आंसर प्रिंट हुआ वो क्या प्रिंट हो गया बेटा, 1000। ठीक है, ऐसी बेटा इसका जो सेकंड पार्ट पूछा गया है क्या, 15 और 8, तो इसको भी आप यहाँ पे चला के दे सकते हैं कि सेकंड कॉल में बेटा n की वैल्यू 15 और b की वैल्यू आपने 8 पास की। तो पहली कॉल में क्या होगा, क्या n 0 है, नो, तो आ जाइए, अब यही 3 लाइनें चलेंगी, d इक्वल टू n मॉड्यूलस b, 15 का 8 से रिमाइंडर, तो बेटा d की वैल्यू 7 हो गई, यानी ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होने चली गई। फिर आपने कहा अननोन
n डिवाइडेड बाई बी, 15 को 8 से डिवाइड करिए तो 1 हो जाएगा। 1,8 लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सेकेंड कॉल प्रोड्यूस कर लेंगे। सेकेंड कॉल में बेटा n की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 8 आई है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 के लिए चलाइए, क्या n 0 है, नो। आगे बढ़ेंगे फिर वही 3 लाइनें, तो d इक्वल टू 1 मॉड्यूलस 8, तो 1 का 8 से रिमाइंडर निकालिए, 1 आ जाएगा। और फिर अननोन 1 डिवाइडेड बाई 8, 0 और कॉमा b की वैल्यू 8 लेके हम अपनी थर्ड कॉल प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। और बेटा जब थर्ड कॉल में आओगे, ठीक है, तो क्या होगा कि n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, जीरो जीरो आई है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए 0,8 पास है, तो 0,8। और जब थर्ड कॉल में आओगे तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब 0 है तो आपको पता है कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, रिटर्न। और बस यहीं से मेरा जॉब शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल वापस यहीं शिफ्ट कर देगा सेकंड कॉल की सेकंड लाइन पे, तो ये लाइन ओवर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 1, तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। और ये लाइन का एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा और फिर ये फंक्शन भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे अननोन 1,8, तो इसका एग्जीक्यूशन ओवर हो गया, या क्योंकि आपने सेकंड कॉल प्रोड्यूस की थी, सेकंड कॉल खत्म हो गई। अब आगे बढ़िए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी, डी की वैल्यू फर्स्ट कॉल में 7 थी, तो अब ये 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा इस बार, 17। ये फंक्शन की कॉल ओवर हो गई और कंट्रोल वापस चला गया। तो बेटा पहले पार्ट का आंसर कितना है, 1000, सेकंड का है 17। और यहाँ पे भी ये पूछा गया है कि ये काम क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट कॉल में आपने कहा था 8,2, तो बेटा ये जो 2 है ना, ये नंबर सिस्टम का बेस है। 2 का मतलब क्या है, बाइनरी, और 8 का मतलब है ऑक्टल, ठीक है। यानी 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो अब आप 8 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें तो देखें क्या आंसर आएगा, 1000। और अगर आप 15 को ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो योर आंसर विल अपीयर एज 17। क्लियर है ना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है बेटा, जो भी नंबर आप पास करते हो उसको बेस बी पे कन्वर्ट करता है। तो यानी आप अपना जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि दैट दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ वैल्यू एन इनटू अ गिवन बेस बी, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेटा ये हम लोगों ने आज यहाँ पे 2 आउटपुट करके देखे। ऐसे बेटा कल मिलेंगे तो कल मैं आपको 1-2 आउटपुट्स और यहाँ पे बताऊँगा, और उसके बाद बाकी जो हैं आउटपुट्स ये आपको अपने आप अटेम्प्ट करने हैं और मुझको सेंड करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।